Hello, this is Learn Concept Through Questions series, and in this part, we will do the extractive metallurgy part basically. So, the first question is a blast furnace produces hot metal containing 3.5% of carbon, 1.5% of silicon, and 95% of Fe. Okay, iron ore contains 80% of Fe2O3, 20% gangue. So, gangue composition also given. The coke rate is 850 kilograms per THM. THM is ton hot metals, and coke contains 80% of fixed carbon and 20% of S. Okay, so the next they have given that flux rate is 450 kg per THM, and and contains 90% of CaCO3 and rest is SiO2. So also they have given that blast furnace gas contains CO2 ratio, that is 24/16. Okay, so from this type of questions they can ask 4 or 5 type of questions. So here we will try to do that type of questions. So the first question they can ask, that is weight of iron ore produced weight of iron ore produced iron ore used for this type of material balance questions. Okay, so the next questions they can ask is weight of slag produced, and the last, that is volume of blast furnace gas produced. And one more question they can ask, if they will give the weight of iron ore, they can ask that the weight of pig iron produced, or the weight of hot metal produced. Okay, so for this type of question, what is the approach? We will read line by line, and then we will try to draw the flow diagram of the process. Okay, so flow diagram or schematic diagram of the process flow is very important in this materials balance type of questions. Okay, so अगर हम उसमें कुछ भी भूल जाएंगे तो वो क्वेश्चंस गलत हो सकता है. सो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस फ्लो बनाएंगे. प्रोसेस फ्लो बनाने से क्या होगा कि जो भी इनपुट और आउटपुट मटेरियल है वो हमको सामने दिखेगा. ठीक है, और वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी मिस नहीं होगा लाइन टू लाइन इनपुट एंड आउटपुट लिखने से. So first thing we will do, that blast furnace produces hot metal containing, they have given that blast furnace produces, that is product. So this is output, they have given. So the blast furnace produces hot metal. Okay, so the first thing is they have given that hot metal produced. Okay, and this hot metal contains 3.5% of carbon, 1.5% of silicon, and 95% of Fe. Okay, so there are many other things in pig iron, but in this question they have given only carbon and silicon other than the iron. Okay, so we write this thing here, that is hot metal produced and that composition. The next line is iron ore contains 80% of Fe2O3, that is iron ore contains 80% of Fe2O3 and 20% gangue materials. So the in input part, the first thing we are having, that is iron ore. Okay, so this iron ore contains 80% of Fe2O3 and 20% gangue. So also they have given the composition of gangue, that is SiO2 plus Al2O3. So two things are in iron ore, but they did not give the iron ore weight. Okay, so the next line is the coke rate is 850 kg per THM, and coke contains 80% fixed carbon and 20% S. So the next thing in input they have given that coke rate means हमको कितना coke इसमें यूज करना पड़ेगा. So they have given that is 85 kg per THM. Okay, so this coke contains basically 80% of fixed carbon and 20% of S. So ये जो fixed carbon and S and this gang material and this और Fe2O3 ये सब जो दे रहा है, उसका इनपुट मटेरियल में इस तरह से देने का मतलब है कि आउटपुट में इसका अलग अलग जगह पे जाने से हो सकता है. ठीक है, so the third line is flux rate is 450 kg per THM, and that flux contain 90% of CaCO3 and rest is SiO2. So the third thing in flux, so this is flux rate, that flux rate contains 450 kg. जो फ्लक्स रेट का जो फ्लक्स का जो रेट है वो है
450 kg per THM। ओके, इसका मतलब अगर हमको 1 टन हॉट मेटल प्रोड्यूस करना है तो 450 kg फ्लक्स लगेगा। एंड ये जो फ्लक्स है वो क्या कंटेनिंग, दिस फ्लक्स कंटेनिंग 90% ऑफ CaCO3 एंड जो रेस्ट है वो है SiO2। ओके, then what is the next line? The next line is CO by CO2 ratio is equals to 24/16. Okay, so this blast furnace gas is one of the product of the blast furnace. So blast furnace gas is product of blast furnace, and they have given that CO by CO2 ratio is equals to 24/16. ओके, सो अभी हमने क्या किया, स्कीमेटिक ड्रॉ कर लिया है, जो कि इनपुट मटेरियल है, ये इनपुट मटेरियल है एंड ये सब आउटपुट है। ओके, सो ब्लास्ट फर्नेस का आउटपुट क्या होता है, हॉट मेटल हो गया, ब्लास्ट फर्नेस गैस हो गया, एंड द थर्ड वन इज स्लैग। स्लैग भी जो होता है वो भी ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट इज वेट ऑफ आयरन ओर यूज्ड। सो अभी हमको क्या पता है, आयरन ओर का कंपोजिशन पता है, बट वी डोंट नो आयरन ओर का वेट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हॉट मेटल में हमको Fe पता है। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर आयरन ओर का वेट पूछ रहा है तो हम लोग जो भी आयरन ओर इनपुट कर रहे हैं एंड जो भी आयरन ओर इनपुट कर रहे हैं और जो भी आउटपुट हो रहा है आयरन, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। सो फॉर कैलकुलेटिंग आयरन ओर वेट वी नीड टू बैलेंस द Fe। ओके, सो इन तो फॉर नाउ हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, दैट इज वेट ऑफ आयरन ओर, वेट ऑफ आयरन ओर। सो हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ आयरन ओर। ओके, सो कैलकुलेशन में हम लोगों ने पहले स्कीमेटिक डायग्राम देख लिया था। सो वो स्कीमेटिक डायग्राम में क्या बोला है कि आयरन ओर कंटेन्स दैट iron ore contains 80% of Fe2O3 and rest 20% is gang material। ओके, सो गैंग में जो है वो SiO2 है एंड Al2O3 है। सो ये जो आयरन ओर है वो हमारा ये ओर है, बट वी डोंट नो द वेट ऑफ आयरन ओर, सो वी विल कैलकुलेट दिस W ओर। सो ये ब्लास्ट फर्नेस में जाता है एंड द आउटपुट इज 95% Fe। ओके, सो 95% ऑफ Fe के लिए क्या करना है हमको, 95% जो भी Fe है वो हॉट मेटल में है। सो वेट ऑफ हॉट मेटल हम लोग एज्यूम करेंगे, वी विल कैलकुलेट फॉर 1 टन ऑफ हॉट मेटल। सो जो मटेरियल बैलेंस टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें हमको एज्यूम्शंस और कैलकुलेशन बेसिस रखना पड़ता है। सो हियर वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1 टन ऑफ हॉट मेटल्स। ओके, सो अभी क्या है, हमको वेट ऑफ आयरन ओर नहीं मालूम है, सो वेट ऑफ आयरन ओर नहीं मालूम है, बट इन दिस परसेंटेज ऑफ Fe2O3 वी नो। सो 80% Fe2O3 है, तो वेट ऑफ आयरन ओर का टोटल 80% जो है वो हमारा Fe2O3 है। ओके, सो अगर हम लोग बात करेंगे Fe2O3 का, तो Fe2O3 ब्रेक होकर 2Fe प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो ये जो 2Fe है वो इधर जा रहा है, दैट इज इन हॉट मेटल। सो क्या करेंगे, 2Fe मींस दैट इज 56 multiplied by 2 and this the molecular weight of this Fe2O3 is 60। so 160 से बन रहा है, सॉरी 112। सो 1 Fe2O3 कितना प्रोड्यूस करेगा, 1/2 by 160 ऑफ Fe। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 112 by 160। सो नेक्स्ट क्या है, और तो कहीं से Fe इनपुट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग कहीं भी देख रहे हैं कोक रेट में Fe नहीं है और फ्लक्स में भी Fe नहीं है और हमारा कहीं भी Fe नहीं है। ओके, सो जो इनपुट पार्ट है वो हमारा ये हो गया, एंड आउटपुट में क्या है, आउटपुट में केवल एक जगह Fe जा रहा है, दैट इज Fe इन हॉट मेटल। ओके, और जो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी स्लैग में जाता है, बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन्ड फॉर स्लैग दैट Fe लॉसेस इन स्लैग। सो आवर एज्यूम्पशन इज नो Fe लॉस इन स्लैग। ओके, सो हमारा एक और एज्यूम्पशन है हम लोगों का, सो इज नो लॉस, सॉरी नो लॉस ऑफ Fe इन स्लैग। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, दैट इज वेट ऑफ ओर मल्टीप्लाइड बाय 80% बाय 100 Fe2O3 एंड एक Fe2O3 मॉलिक्यूल से कितना Fe बन रहा है, 112 बाय 160 Fe। सो इधर हम लोगों का हॉट मेटल का वेट कितना है, 1 टन, दैट इज 1000 kg, एंड इसमें 95% जो है हमारा वो है Fe। सो 95 बाय 100, यहाँ पे हम लोगों ने 11
2/160 इसलिए किया क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म में था Fe2O3 एंड वो Fe में जनरेट होता है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हमारे पास Fe है, सो वी डिड लाइक दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 95/100। ओके, सो 1000 इज टोटल वेट एंड उसमें Fe कितना है 95%। Fe कितना है 95%, दैट्स व्हाई वी डिड लाइक दैट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 95/100। सो यहाँ से अगर हम वेट ऑफ और कैलकुलेट करेंगे, सो इजी कैलकुलेशन है, सो वी कैन कैलकुलेट इट इजिली एंड वी विल फाइंड द वैल्यू दैट इज 1696। सो अभी हमने क्या किया, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था दैट इज वेट ऑफ आयरन ओर, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 1696.4 kg। I have written 1696 kg, so 0.4 जितना हम लोग पॉइंट में लेके चलेंगे एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेट ऑफ स्लैग प्रोड्यूस्ड। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए, स्लैग प्रोड्यूस के लिए हम लोगों ने क्या किया था, पहले से ही हम लोगों ने स्कीमेटिक फ्लो बना रखा था। सो स्लैग जो होता है, स्लैग का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्लैग का फॉर्मेशन या तो कुछ पार्ट और का आ रहा होता है। सो अभी हमने क्या किया, फर्स्ट एजम्पशन हमारा था कि नो लॉस Fe, नो लॉस ऑफ Fe इन स्लैग। सो हमारा क्या है, द फर्स्ट लाइन क्या है, आयरन ओर कंटेन्स 80% ऑफ Fe2O3 एंड 20% गैंग। सो गैंग पार्ट जो है वो हमारा स्लैग देगा, दैट इज गैंग पार्ट। ओके, द नेक्स्ट इज कोक रेट। कोक रेट जो कोक फीड कर रहे हैं उसमें जो 20% एस है, एस कंटेंट जो भी है वो सारा कुछ गैंग में जाएगा। सो द नेक्स्ट इज एस इन कोक। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज SiO2 इन फ्लक्स। ओके, सो द फ्लक्स रेट इज 450 kg। जो 450 kg पर टन हॉट मेटल हम लोग इसमें डाल रहे हैं, उसमें से जो रेस्ट, दैट इज रेस्ट इन SiO2 मीन्स 10% जो है वो हमारा जाएगा, 10% जो हमारा जाएगा वो फ्लक्स से स्लैग में भी जाएगा। ओके, सो गैंग हो गया, एस इन कोक हो गया, फ्लक्स हो गया, ये जो पार्ट है वो हमारा स्लैग प्रोड्यूस्ड करेगा। ओके, सो अभी हम लोग स्लैग के लिए क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस करेंगे। ओके, सो वेट ऑफ स्लैग निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं वेट ऑफ स्लैग। वेट ऑफ स्लैग हम कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ स्लैग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा गैंग मटेरियल है, गैंग मटेरियल कितना है, 20% गैंग मटेरियल है, किसका, आयरन ओर का। ओके, सो आयरन ओर का वेट हमको मालूम है, आयरन ओर का वेट, सो वेट ऑफ आयरन ओर मल्टीप्लाइड बाई 20% जो है इसका, वो हमारा चला जाता है स्लैग में। ओके, सो एक पार्ट ये हो गया, वेट ऑफ ओर मल्टीप्लाइड बाई 20/100। 20 क्यों, क्योंकि 20 जो टोटल आयरन ओर का वेट है उसका 20% गैंग मटेरियल है, और गैंग जो है वो हमारा स्लैग बनाता है, इसलिए 20% गैंग चला गया उसमें स्लैग में। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, एस इन कोक। सो एस इन कोक कैसे निकालेंगे, कोक जो फीड रेट है वो हमारा 1 टन हॉट मेटल के लिए है, तो 1 टन हॉट मेटल के लिए 850 kg हमको कोक चाहिए। इसमें क्या है, जो हमारा 20% है वो हमारा एस परसेंट है। ओके, सो दिस पार्ट ऑल्सो वी विल ऐड दिस पार्ट। एंड द नेक्स्ट पार्ट क्या है, फ्लक्स। तो फ्लक्स हम कितना फीड कर रहे हैं, 450। ओके, सो 450 फ्लक्स फीड कर रहे हैं, इस फ्लक्स में क्या है, हमारा जो SiO2 है वो है 10%। तो SiO2 टोटली जो है वो चला जाएगा स्लैग पार्ट में। ओके, बट ये जो हमारा फ्लक्स में, और दूसरा क्या है 90%, फ्लक्स में क्या है 90% CaCO3 है। ये CaCO3 जो है वो हमारा ब्रेक होता है CaO प्लस CO2 में। तो ये जो CO2 है वो ब्लास्ट फर्नेस गैस में चला जाएगा, एंड ये जो CaO है ये हमारा स्लैग में आएगा। सो ये वाला पार्ट भी ऐड होगा। सो 450 इंटू 90/100, ये तो ठीक है, बट CaO केवल इतना पार्ट आ रहा है, दैट्स वाई वी विल डू, CaO का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 56 होता है एंड CaCO3 का टोटल 100 होता है। सो 56/100 क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, CaCO3 को ब्रेक किया है CaO प्लस CO2। सो ये इतना पार्ट एक पार्ट है और एक पार्ट हमें CaO मिल रहा है। सो ये अगर 100 पार्ट है तो ये जो हमारा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 56 उतना पार्ट मिलेगा। सो एक पार्ट के लिए क्या होगा, 56/100। ओके, दैट्स वाई वी टेक 56/100 हियर। ओके, सो अभी क्या है, हमारा जो हॉट मेटल है उसमें 1.5%
5% ऑफ सिलिकॉन जा रहा है। मींस ये जो सिलिकॉन हम फीड कर रहे हैं गैंग से कर रहे हैं या फ्लक्स से कर रहे हैं, ये सारा जो कुछ पार्ट जो सिलिकॉन का है वो हमारा चला जा रहा है हॉट मेटल में। सो ये हमारा माइनस होगा। तो हॉट मेटल हमारा कितना है 1000 केजी मल्टीप्लाइड बाई 1.5% ऑफ सिलिकॉन है इसमें। ओके, और ये जो सिलिकॉन है वो कहाँ से आ रहा है? डायरेक्टली तो सिलिकॉन SiO2 से आ रहा है, ठीक है। तो SiO2 से आएगा तो ये कितना होगा हमारा, ये दैट इज ये 28 होता है एंड दिस मच वी नो दैट इज। तो अभी हमारे केस में क्या है, सिलिकॉन का वेट पता है और हमको SiO2 का वेट निकालना है। सो 28 60 SiO2 प्रोड्यूसेस 28 एंड 1 सिलिकॉन प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना सिलिकॉन चाहिए, दैट इज 28/60। सो 28/60 कर देंगे यहाँ पे। ओके, दिस इज 60 एंड ये वाला जो पार्ट है ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट वेट ऑफ स्लैग। सो वेट ऑफ स्लैग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वेट ऑफ ओर की वैल्यू पुट कर लेंगे, इसका 20% ले लेंगे प्लस 850 इंटू 100/20 कर सकते हैं। फॉर एस कंटेंट 450 इंटू 10/100, क्योंकि फ्लक्स में हम लोग पता कर रहे हैं SiO2। ओके, सो 450/90/100 इंटू 56/100, ये हम लोग CaCO3 कंटेंट निकाल रहे हैं फ्लक्स में। and this is 100 into 1.5/100 into 28/60। सो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हॉट मेटल में जा रहा है, इसलिए वो माइनस पार्ट होगा, क्योंकि ये जो भी इनपुट कर रहे हैं हम लोग वो सारा स्लैग में नहीं जाके कुछ 1.5% हॉट मेटल में चला जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट वेट ऑफ स्लैग दैट इज 748.938 kg। ओके, सो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। This question, so for this question we have calculated the first part, that is weight of iron ore, that is 1696.4 kg, and the second part is weight of slag, that is 748.9 something kg। सो इसी तरीके से क्या हो सकता है कि इस मटेरियल बैलेंस टाइप के क्वेश्चंस में वो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस गैस क्या होगा ये भी पूछ सकता है। दे कैन आस्क द रेशियो ऑफ CO/CO2 in BF gas। okay, so this is also one type of question, and they can also ask the weight of hot metal produced। okay, and they can ask many more questions from this type of material balance। So through this learn concept through question series, we can learn these various type of questions. These two parties just examples of how we will do the learn concept through the questions, and rest part we will do in our upcoming videos that will release through the learn concept through the questions platform। okay, so I hope you guys will like this learn concept through question pattern which is provided by Test Yourself। So this is from my side. Thank you.